भारतीय उद्योगों के वैश्विक विस्तार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दक्षिण भारत की सबसे बड़ी उद्योग प्रदर्शनी इंडेक्स 2.0 2025 का आयोजन 3 से 6 जुलाई 2025 तक विज्ञान भवन पटना बिहार में किया जाएगा। इस आयोजन को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। एनआईडीसीसी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पटना के विज्ञान भवन में उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस भव्य आयोजन की रूपरेखा नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी एनआईडीसीसी द्वारा तैयार की गई है, जो देश के छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यरत है। प्रदर्शनी में 200 से अधिक व्यापारिक और रिटेल ब्रांड, 20 से अधिक वित्तीय संस्थाएं और कई अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। We had a good support from MSME, our Honorable Minister Jitan Ram Manjhi ji. Then automatically followed by another 3 ministries. One is Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Fishery, Dairying and Animal Husbandry, and Ministry of Commerce and Trade. So with this support of 4 ministries, we have formed this NADCC. Our basic thing is, first basic what we are planning is, we need to bring awareness about the government schemes to each and every person, nook and corner of India. This is our first initiation. So that we are doing, and we have conducted Index 2025 exhibition in Cochin this month, May 2nd, 3rd, 4th, and one day we extended, 5th also we have conducted, and lot of embassies has participated, lot of stalls we have seen there. We expected for 200 something, but that has crossed beyond 300, 350. And there one thing we observed, lot of entrepreneurs, business people, industrialists and startup entrepreneurs awaiting to get know what are all the schemes government of India is providing under our Modi ji. So no one knows that. Our basic priority we have taken to create the awareness to everyone, where our index NADC is working on that first, and at the same time we are bringing the manufacturer, buyer to connect. So the best platform is we are conducting exhibitions. In coming days, June 3rd, 4th, 5th, 6th, we are conducting exhibition Gyan Bhavan Patna. So that will give good support to the industrial entrepreneurs and small business people and all. There even they can level up their business by contacting with the different country ambassadors and all, and everyone can grow. And we are 100% we seen the success in Cochin 2025. The same thing we are going to see. We will definitely get a grand success in Bihar Index 2.0 exhibition, which is happening on 3rd, 4th, 5th, 6th of June. Thank you. Programming to implement the schemes of our beloved Prime Minister Modi ji, all departments, particularly 4 departments are supported us. Now 6 to 7 departments are coming with us, and we are contacting other departments. That efficiently and effectively the schemes should reach the people in order to raise the income, standard of life. That is the policy of the central government. We are maximum trying. We will be achieving things. India will be the #1 country. We will be for the part of this. Thank you very much. Thank you. जी, जिस तरह से बिहार की उन्नति को लेकर के जो एनआईडीसीसी ने वो लिया है सजेशन, लेकिन विकास किस तरह से रोजगार के लिए लोगों को फंड जरूर मिलता है, लेकिन ले लेना आप ले सर, जिस तरह से पीएम आवास की तरफ योजना भी दिया जाता है, काफ़ी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, और विकास अभी चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या ये सब चुनाव को देखकर हो रहा है या उससे पहले भी हो रहा है? नहीं, आपकी बात बहुत तगड़ा है। नहीं, आपके ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए ये रोज़गार और जो है वो एक निरंतर मतलब सदाबहार चीज़ें हैं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसमें राजनीति और इसमें इलेक्शन को लेकर कोई ऐसा नहीं है। सेंटर का पूरा सहयोग है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री जीतन राम मांझी जो MSME मिनिस्टर हैं, और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है श्री चिराग पासवान जी,
दो मिनिस्ट्री का और दो मिनिस्टर लोगों का बहुत सहयोग है। वो खुद चाहते हैं कि बिहार के जो लड़के हैं वो एंटरप्रेन्योर बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने, वो खुद मतलब टेक्निकली स्किल बने और उस चीज़ को वो करें वहाँ पे, और उसको ट्रेनिंग ऑब्वियस है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर अगर किसी एरिया में होता है तो काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हम इलेक्शन को लेकर स्पेशली भी इसी टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई तो टाइम होगा, लेकिन ये उस तरीके से ना देखा जाए, इसको उस तरीके से देखा जाए कि ये एक रोज़गार को ध्यान में रख के और बिहार को MSME का हब बनाना है, उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, इससे पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव है, बिना राज्यों के चुनाव भी हैं, वहाँ स्टार्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ बिहार नहीं, अभी केरला में किया गया ना, केरला में अभी हम लोग करके आए हैं, अभी केरला में है, अभी फिर महाराष्ट्र में करेंगे, फिर यूपी में करेंगे, तो फिर बहुत सारे स्टेट से MP में करेंगे। देखिए ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा, हर एक महीने डिफरेंट स्टेट में ये ऐसे एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय हम लोग, आप सोचिए ये एक ऐसा मंच है जिसमें आप ये समझिए कि 40 एम्बेसी का हमें योगदान रहेगा और 7 मिनिस्ट्री का, सेंटर का, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का। तो मतलब एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा कि जिससे लोगों को एक मतलब कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है उसके लिए आप सोचो कि एक इंटरनेशनल मंच मिले NIDCC का, जो सब चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिल जा रहा है। तो हमें नहीं लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट के लिए इससे बेहतर कोई मंच होना चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर रोजगार जैसे जैसे कंपनियां लगती हैं, फैक्ट्री लगती है, बड़ा रोजगार होता है, तो वो माफिया सबसे पहले आता है। वसूली माफिया को कैसे रोका जा रहा है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे टारगेट सबसे पहले उन्हीं को किया था, इसलिए वहाँ रोजगार नहीं है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, उस पर खैर हमें कुछ कमेंट करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। आपको ही पता है पहले लालू जी के राज्य में क्या होता था और अभी करंट में क्या होता है। मतलब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे बिहार जो है अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट ठीक है, किसी चीज़ को होते होते थोड़ा टाइम लगता है, तब उसको उस तरीके से लिया जाए ना कि ये लिया जाए कि भाई वहाँ लोग जाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए सारा पहले जब बिहार सब कुछ था, जो देखिए ऐसे फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए या एग्रीकल्चर ले लीजिए, जो भी है मतलब बहुत सारा, आप स्टील मिनिस्ट्री दे लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट, बहुत सारा चीज़ें थी वहाँ पे सारा ना। तो उसको दूसरे वे में लेने के बजाय हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा।